Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the fifth part of our chapter cyber safety, and today in this chapter we have to discuss about online safety. Well, till now we have done the introduction part, then we have discussed about the identity protection where I have taught you about the anonymous browsing and private browsing. Then next we have done this, that is proper uses of password, like how we can pick a strong password and how we can save ourselves from getting hacked just because of our weak password. And then in the previous class, that is yesterday, we have discussed about the confidentiality of information, like how we can save our information from getting hacked or from getting stealed in any kind of online service. And today we have to discuss a very important thing, a very important piece of knowledge, that is online safety. Now let's begin. So this online safety simply means saving ourselves whenever you are doing any kind of or we are doing any kind of online activity, whether you are attending any online web conference or you are chatting with someone or you are doing any kind of web surfing or web searching, or you are watching any online video or any online stream. In all these scenarios we have to save ourselves, we have to protect our identity, we have to protect our important or crucial data, and we also have to save our important system related information which can harm you if any hacker will get access to that particular information. Well, when you work online, you may open a malicious website or click at some malicious link. All this may infect your computer with malwares. By combining the word malicious and software, we get this word malware. अब जरा समझते हैं भाई, what is this malware? Just now I taught you that whenever we access any malicious website, well, this malicious means something which is very harmful or something which is carrying some kind of harmful scripts or some hacking scripts which can hurt our confidentiality or privacy of our data. So whenever you are working on any kind of online service or you are using any kind of online platform, there is a risk that any malicious script, any malicious link or any malicious website can steal your data or it can infect your computer. Sometimes some of these websites carry some malwares. Fine. Now this malware is a type of malicious software. Malware is a combination of two words, malicious and software, where malicious means harmful and software means any piece of programming or code which can work on your computer as a program. Fine. Now these malicious programs generally enter into your computer as an important program and then they start misbehaving, and this can cause a lot of data loss, or it can also make your computer slow and some other unusual activities will start happening. Now let's read this one. The term malware is used to describe any malicious program on a computer or mobile device. These programs are installed without the consent of the user and can cause a number of unpleasant effects such as crippling computer performance, mining your system for personal data, erasing data, or even adversely affecting the operations of computer controlled hardware. Well, this much simply means that when these malwares will attack your computer, they will do some task. Fine. And some of these operations are, they will cripple your computer's performance. It means they will make your computer slow, or they will search for your personal information such as your ID password, your net banking details, your account details in your computer system, or in some cases they will erase the data from your computer, or they will start affecting the programs which are managing or working with your hardware components. It means it will corrupt the drivers, it will corrupt the softwares which are helping you to work with your computer effectively. चलो अब रीड करते हैं नोट वाले पार्ट को. Malware is a general term used to refer to a virus, worms, spywares, adwares, etc. अब malware भाई क्या होता है? Malware एक जनरल टर्म है, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर सारे के सारे वायरसेस, worms, adwares, spywares, blockwares, जितने भी इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं which can harm your computer or which can do any kind of unethical activity with your computer, all these softwares or programs are generally termed as malwares. In other words, these are some unwanted softwares
that someone else wants to run on your computer. Sometimes these malwares are created by some attackers or some hackers, and through these malwares they can steal your personal information. So we can also say that these malwares are some kind of unwanted software that you don't want, but these are made by some attackers to gain some information from your computer system. Well, these malwares will affect your computer, these will infect your computer, making it behave in a way which you do not approve. फाइन, मतलब ये क्या करेगा भाई, तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो तुम कभी अपने कंप्यूटर में नहीं करना चाहते हो. वेल नाउ लेट्स डिस्कस दिस होल इन अ वेरी सिंपल वर्डिंग. अभी हम लोगों ने डिस्कस करा भाई कि जब भी हम लोग किसी भी टाइप की ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लिंक्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स की रेफरल्स दिए होते हैं, और इनमें से बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं जिनमें कोई फेक या कोई भी मैलवेयर टाइप का प्रोग्राम हो सकता है. और जब ये मैलवेयर प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर में आता है, तुम्हारे कंप्यूटर में स्नीक इन करता है, तो भाई इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे कंप्यूटर के लिए, और ये हमारे कंप्यूटर को फर्स्ट फेज से ही हार्म करना स्टार्ट कर देता है. जनरली क्या करता है भाई, हमारे कंप्यूटर को या तो बना देगा स्लो, or it will steal your important data, or it will delete your data. Not only it will delete your data, also it will corrupt all your softwares and it will make all your hardwares absolute. Fine. So these are some things which can be done by any kind of malware. Now let's discuss about the types of malware in detail. The first and the most important type of malware is computer viruses. अब एक छोटा सा तुम लोगों के लिए वर्क है भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में वायरस का फुल फॉर्म, फाइन, वायरस का फुल फॉर्म तुम लोगों को टाइप करना है, एंड प्लीज़ ट्राई टू बी लॉयल विद योरसेल्फ. अगर नहीं आता है प्लीज़ टाइप, यू डोंट नो, बट इफ़ यू नो द करेक्ट फुल फॉर्म देन प्लीज़ टाइप इट करेक्टली. डोंट सर्च इट फ्रॉम गूगल. गूगल मत करो, खुद से झूठ मत बोलो, खुद से कम सच बोलो पढ़ते टाइम. वेल, computer viruses are malicious codes or programs that cause damage to data and files on a system. फाइन, ये क्या करते हैं भाई, malicious programs होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं और हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को या उसके डेटा आइटम्स को डैमेज करते हैं. वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एरियाज, फाइल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, फाइन, या फिर मैक्रोस को भी. भाई ये वायरसेस क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जितना भी बूट ब्लॉक है, मतलब जो बूटिंग सेक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम का एरिया यानी कि यहाँ पे सिस्टम की फाइल स्टोर है, या फिर एनी काइंड ऑफ फाइल और एप्लीकेशन दैट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, मैक्रो, इन सारी चीज़ों को हार्म करते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं या कभी कभी इनको करप्ट भी कर देते हैं. अब देखो उससे होगा क्या. सपोज करो किसी वायरस ने तुम्हारे कंप्यूटर के बूट सेक्टर को अटैक करा, तो वेल जैसे ही वो तुम्हारे कंप्यूटर के बूट सेक्टर को अटैक करेगा तुम्हारा सिस्टम बूट नहीं होगा, और अगर सिस्टम बूट नहीं होगा तो तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा. अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज बूटिंग. अगर पता है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट डाउन करो, और अगर नहीं पता है भाई तो आगे सुनते रहो. वेल, बूटिंग इज अ प्रोसेस whenever we start our computer the operating system is loaded in the computer's main memory. ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करा जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज बूटिंग. ये जो प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करने की, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग. फाइन, तो ये वायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को बूट नहीं करने देता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है या वो स्टार्ट नहीं होता है. या फिर कभी कभी ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स को करप्ट कर देता है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है. एंड इन सम अदर केसेस इट विल सिंपली हार्म योर सिस्टम एरियाज, यानी सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स, ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा. या फिर तुम्हारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स और एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं या जो मैक्रोस प्रेजेंट हैं, ये उनको ब्लॉक कर देगा. देन नेक्स्ट इज वॉर्म. अभी जो भाई वॉर्म होता है, ये वॉर्म कोई हार्मफुल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारी फाइल्स के साथ कुछ खतरनाक नहीं करता है, बस इसका अपना एक अलग नेचर है. वॉर्म्स क्या करते हैं भाई, वॉर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर. फाइन, अ वॉर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट ईट्स अप द एंटायर डिस्क स्पेस ऑफ मेमोरी. फाइन, ये क्या करता है, खुद की कॉपी क्रिएट करता रहता है और तुम्हारे कंप्यूटर की मेमोरी को पूरी तरीके से फुल कर देगा. A worm keeps on creating its copies until all the disk space और memory is filled. फाइन, ये क्या करेगा, अपनी कॉपीज तब तक का बनाएगा जब तक का तुम्हारे कंप्यूटर की सारी मेमोरी फिल नहीं हो जाएगी, और इससे हो गया तुम्हारा सिस्टम स्लो हो जाएगा अल्टीमेटली. लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ.
सपोज तुम्हारे पास लैपटॉप में 1 TB की हार्ड डिस्क थी और तुम्हारे कंप्यूटर में उस 1 TB में से यू आर यूजिंग ओनली 200 GB। अब तुम्हारे कंप्यूटर में 700 GB से ज़्यादा डिस्क फ्री होगा। फाइन, मैंने 700 इसलिए लिखा है, वैसे तो 800 मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, बट अगर तुम्हारे कंप्यूटर में 1 TB हार्ड डिस्क है बेटा, तो वहाँ पे उस केस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 970 या 950 GB ही यूज़ करने को मिलती है। फाइन, अब सपोज करो तुम्हें 200 GB यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है, और वहाँ पे 700 GB से ज़्यादा हार्ड डिस्क तुम्हारी फ्री होगी, ठीक है। अब अगर इस केस में कोई भी वॉर्म अटैक करता है, कोई भी वॉर्म अगर इस केस में तुम्हारे पीसी पर अटैक करता है, तो वो क्या करेगा, वो इस 700 GB वाले फ्री स्पेस को धीरे धीरे फुल कर देगा। और जैसे ही तुम्हारी पूरी की पूरी 1 TB हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, तुम्हारा सिस्टम रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, बिकॉज उसमें इतना सारा डेटा होगा कि उसको वो स्टोर भी नहीं कर पा रहा होगा प्रॉपरली, एंड इट विल मेक योर कंप्यूटर वेरी स्लो। ये तुम्हारे सिस्टम को बहुत स्लो बना देगा, तुम्हारा कंप्यूटर किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर पाएगा, and ultimately your computer will not respond properly. So it was all about virus and worms, and now we have to discuss the most important term, that is Trojan horse. Fine. Now a Trojan horse is a program that appears harmless. ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। ट्रोजन हॉर्स दिखने में एक सॉफ्टवेयर की तरीके होता है जो कि बिल्कुल हार्मलेस लगता है, मतलब ये किसी भी तरीके का खतरनाक एक्टिविटी तुम्हारे कंप्यूटर में तुम्हें लगेगा कि नहीं करेगा, बट actually performs malicious functions such as deleting or damaging files. Fine, this Trojan horse generally looks like a useful program or any kind of harmless application, but when it enters or sneaks into your computer, it starts behaving abnormally. It means it will delete your files, it will damage your files, it will corrupt your memory space, it will fill up your memory space, and ultimately it will make your system very slow. Fine. अब जरा थोड़ा सा ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेल, एज पर द ग्रीको रोमन माइथोलॉजी, वो लोग क्या करते थे भाई, वॉर्स के टाइम पे एक लकड़ी का घोड़ा बनाते थे और उसको वो लोग ट्रोजन हॉर्स बोलते थे। फाइन, और जनरली इस घोड़े के अंदर कुछ सोल्जर्स छुप के बैठ जाते थे, ठीक है, और ये जो घोड़ा होता था वो क्या करते थे, वो लोग अपनी अपोजिशन आर्मी को गिफ्ट कर देते थे। जैसे वो आर्मी अपने घोड़े को अंदर लेके जाती थी, लकड़ी वाले घोड़े को, तो उसके अंदर जितने भी ट्रूप्स छुपे होते थे वो क्या करते थे, बाहर निकलते थे रात के टाइम पे और सामने वाली आर्मी के ऊपर रात में अटैक कर देते थे, स्नीक अटैक करते थे, जिससे कि उनको पता नहीं चलता था, लोग वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं रहते थे और वो लोग खुद को सेफगार्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये ट्रोजन हॉर्स भी उसी तरीके से काम करता है कि दिखने में एक यूजफुल या फिर एक हार्मलेस एप्लीकेशन लगेगा। फॉर एग्जांपल, तुमने क्या करा, तुमने इंटरनेट से कोई गेम डाउनलोड करा, ठीक है, तुम लोगों ने देखा बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, हम लोगों के पास फ़ोन में बहुत सारी एड्स आती हैं। फाइन, लाइक कुछ ऐसे रोप वाले गेम्स आते हैं, कुछ पजल वाले गेम्स आते हैं, ठीक है, पीसी के लिए गेम्स आते हैं हम लोगों के पास कुछ इस तरीके के, या फिर एंड्रॉइड के लिए गेम्स आते हैं। और हम लोग करते क्या है भाई, हम लोग इन सारे गेम्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये दिखने में तो एक गेम था, दिखने में तो एक यूज़फुल एप्लीकेशन थी, बट ये करेगा क्या, जब तुम इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे होगे ना, ये उस टाइम पर क्या करेगा, तुम्हारे सिस्टम में मिसबिहेव करने लगेगा, तुम्हारी फाइल्स को डिलीट करेगा, डैमेज करेगा, तुम्हारे सिस्टम को स्लो कर देगा, या हो सकता है तुम्हारे पूरे के पूरे सिस्टम को ही ख़राब कर दे। फाइन, कभी कभी ये गेम्स की तरीके होते हैं दिखने में, कभी कभी ये किसी इंपॉर्टेंट टूल या कभी कभी एंटीवायरस जैसे होते हैं दिखने में ये। फाइन, तो ये हमेशा अपने फेस को चेंज करते रहते हैं। हर हैकर, हर अटैकर, हर वायरस क्रिएटर अपने मन के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को वायरस के फॉर्म में क्रिएट करके मार्केट में लॉन्च कर सकता है। फाइन, जनरली ये सारे के सारे ट्रोजन हॉर्सेस हम लोगों को फ्री के सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, जितने भी हम लोग फ्री के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं नेट से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ फोटोशॉप की, तो भाई फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट हम में से बहुत से लोग इतने स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं, उसका एक फ्री या क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। अब जितने भी ये फ्री या क्रैक्ड वर्जन होते हैं, उन फ्री या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में होते हैं वायरसेस या वॉर्म्स या फिर ट्रोजन हॉर्सेस, जो हमारे सिस्टम को अल्टीमेटली स्लो कर देते हैं। देन आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पाईवेयर। अब ये स्पाईवेयर भाई क्या होता है, नाउ लेट्स रीड दिस। स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटीज and report this data to the people who are willing to pay for it. फाइन, मतलब क्या हुआ, स्पाईवेयर क्या करेगा, तुम्हारे कंप्यूटर में स्पाई करने के लिए आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, खुद को हाइड कर लेगा, खुद के इंस्टॉल होते ही खुद को हाइड कर लेगा और ये तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता रहेगा, तुम्हारी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, ये तुम्हारे सारे मैसेजेस, तुम्हारे सारे पासवर्ड्स, तुम्हारी सारी एप्लीकेशंस की हिस्ट्रीज, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। और जिस भी बंदे ने इस स्पाईवेयर को तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल करा है या फिर जिसने भी स्पाईवेयर के लिए पे करा है, या उसके पीसी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर देगा।
इट ट्रैक्स द यूजर्स बिहेवियर एंड रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन बैक टू द सेंट्रल सोर्स। अब जिस भी बंदे ने स्पाईवेयर को क्रिएट करा होगा या जिसने भी इसके लिए पे करा होगा, ये क्या करेगा, जिसके ऊपर भी अटैक कर रहा है भाई, ये उसके पास से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के अटैकर तक का पहुंचा देगा। These are used to spy on someone either for legal or illegal purpose। अब स्पाईवेयर के दो तरीके के यूज होते हैं, कभी कभी इसको लीगली यूज करा जाता है और कभी कभी इसको इलीगली यूज करा जाता है। चलो नाउ वी हैव टू डिस्कस द लीगल यूज फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस द इलीगल यूज ऑल्सो। अब लीगल यूज में क्या होता है, पुलिस या फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और आर्मी और एनी काइंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और स्पेशल टास्क फोर्सेस, ये लोग क्या करती हैं, जब भी ये लोग किसी भी क्रिमिनल को पकड़ती हैं, किसी भी थीफ को पकड़ते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उसके फ़ोन में एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और उस थीफ या उस क्रिमिनल को पता भी नहीं चलता है। फाइन, ये ऐप क्या करती है, उनके पीसी में या उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक स्पाई का काम करती है। मतलब ये उसकी सारी की सारी डिटेल्स को ट्रैक करेगी और सीधा सीधा पुलिस को या जिस भी अथॉरिटी ने उस ऐप को इंस्टॉल करा होगा उनके डिवाइस में, उस अथॉरिटी तक का वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचाती रहेगी। इससे भाई बेनिफिट क्या हुआ, इससे जो पुलिस है वो उस थीफ पे या उस क्रिमिनल पे नज़र रख सकती है और फ्यूचर में उसको क्राइम्स करने से रोक सकती है। अब बात करते हैं इसका इलीगल यूज़। इलीगल यूज़ में भाई क्या होता है, बहुत सी बार हैकर्स क्या करते हैं या बहुत सी बार हम लोगों के ही कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो इन स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं। ठीक है, जनरली बहुत महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, इन सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ से उनका आईडी पासवर्ड, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और इस टाइप की सारी चीज़ों को वहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट लेट मी क्लियर आउट वन थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एप्लीकेशंस होती हैं। कभी कभी ये जो अटैकर होता है ये उसके साथ भी बुली करने लग जाती है, मतलब ये जो अटैकर होगा ये क्या पता उसी के ही साथ हैकिंग करने लग जाए। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी आर वर्किंग विद दीज स्पाईवेयर्स। देन नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। वेल, अगर मैं बात करूंगा वायरसेस की, तो वायरसेस में या किसी भी टाइप के मैलवेयर प्रोग्राम्स में सबसे खतरनाक होता है रैंसमवेयर। अब ये रैंसमवेयर भाई क्या होता है, लेट्स रीड दिस वन। Ransomware infects your computer, then encrypts the sensitive data such as your personal documents or photos and demand a ransom for their release। मतलब क्या करेगा ये रैंसमवेयर पहले तुम्हारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर में आएगा और चुपचाप से घुस के बैठ जाएगा शांति से। फिर ये क्या करेगा, एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट का मतलब हो गया लॉक कर देना या फिर कोड कर देना। क्या करेगा, तुम्हारे सिस्टम में आने के बाद तुम्हारी सेंसिटिव डेटा को, तुम्हारी एप्लीकेशंस को, तुम्हारे हार्ड डिस्क के स्टोरेज को या फिर तुम्हारे किसी ऐसे फोल्डर को जिसमें तुमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टोर कर रखा हुआ है, ये उस फोल्डर को लॉक कर देगा, उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा देगा खुद से अपनी मर्जी से। फाइन, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। और फिर ये क्या करेगा भाई, तुमको तुम्हारी ही एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, तुम्हारे ही डेटा को यूज़ करने के लिए तुमसे ये ऑनलाइन गेटवेज के थ्रू पैसे मांगेगा। मतलब तुम्हारे सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो तुमसे पैसे मांगेगा सिस्टम को यूज़ करने के लिए, तुम्हारे ही सिस्टम यूज़ करने के लिए। और इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर तुमने पे नहीं करा तो उस केस में द डेटा इज़ डिलीटेड। डेटा क्या होता है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाता है। या फिर कभी कभी सम रैंसमवेयर वेरिएंट्स लॉक आउट ऑल एक्सेस टू योर कंप्यूटर। वेल, अगर तुम पे नहीं करते हो तो दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हारा सिस्टम का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा या फिर तुम्हारे सिस्टम को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली यू हैव टू बाय अ न्यू कंप्यूटर देन। फाइन, रैंसमवेयर से बचने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन बचता है, अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को निकालो, उसको तोड़ के फेंक दो एंड परचेज अ न्यू वन, दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज एडवेयर। भाई इसके नेम में लिखा हुआ है एड। अब ये एडवेयर्स क्या होते हैं, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट डिलीवर अनवांटेड एड्स टू योर कंप्यूटर जनरली इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स। फाइन, एडवेयर्स क्या होते हैं भाई, एडवेयर्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोगों के फ़ोन्स की डिस्प्ले पे, हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले पे कुछ ऐड शो करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं भाई, सपोज करो यू आर यूजिंग सम ऐप, लाइक अभी मैंने क्लास 10th के बच्चों को एक HTML एडिटर के ऐप के बारे में बताया है। ठीक है, अब इस HTML एडिटर ऐप में एक एडवेयर जो है वो इनबिल्ट है, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये एडवेयर क्या करता है, जैसे ही बच्चे इस ऐप को ओपन करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में, तुरंत का तुरंत ये जो एडवेयर है वहाँ पे एड्स को शो करना स्टार्ट कर देता है। फाइन, जिससे क्या होगा, दीज एड्स विल कंज्यूम योर नेटवर्क बैंडविड्थ। जो भी तुम्हारे डिस्प्ले पे एड्स आएंगी वो क्या करेंगी, तुम्हारे डेटा को कंज्यूम करेंगी, तुम्हारे नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंज्यूम करेंगी और तुम्हारा इंटरनेट स्लो हो जाएगा। एडवेयर इज सिमिलर टू स्पाईवेयर। जो एडवेयर्स हैं ये भी स्पाईवेयर के तरीके होते हैं। हाउएवर इट मे बी इंस्टॉल्ड विद योर कंसेंट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर को खुद से इंस्टॉल करते हैं जो ऐड शो होते हैं,
और कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अपने आप से इंस्टॉल हो जाते हैं। फाइन, सो दैट्स वाई वेन एवर वी आर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ ऐप वी हैव टू बी स्पेसिफिक। हम लोग को चेक करना चाहिए क्या वो ऐप ऐड तो नहीं कंटेन्स करती है। अगर किसी भी ऐप में एड्स हैं बेटा, तो वहाँ पर अपनी प्राइवेट या किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डालने से पहले 10 बारी सोच लेना। So it is advised that you thoroughly read installation agreement before you allow installation of a software. इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्रीमेंट को रीड करना किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले। मतलब क्या हुआ, अगर तुम प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से या किसी भी वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लो। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके के डेटा लॉस की बात हो रही है तो प्लीज़ डोंट यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं डैमेजेस कॉज्ड बाय मैलवेयर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो मैलवेयर्स हमारे कंप्यूटर में जनरली करते हैं। वेल, द फर्स्ट थिंग, डैमेज और डिलीट फाइल्स। सबसे पहला काम मैलवेयर्स क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में आके हमारी फाइल्स को डैमेज कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। Some viruses may delete or damage random documents or specific files that are crucial to your operating system. For example, your operating system files. Well, this damage can range from rendering just a few files to affecting your entire computer. अब यहाँ पर क्या होता है भाई, जैसे ही malwares हमारे कंप्यूटर में इम्पैक्ट करते हैं, फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट करते हैं, तो भाई ये थोड़ी थोड़ी फाइल्स से लेकर के कंप्यूटर की सारी फाइल्स को तक का इरेज कर सकते हैं। इट मीन्स ये तुम्हारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को ब्लैंक कर देंगे एंड पॉसिबली यू हैव टू री इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फाइन, इट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब क्या होगा भाई, सारा का सारा डेटा वाइप हो जाएगा और तुम्हें फिर से सारी की सारी फाइल्स को फिर से इंस्टॉल करके फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट, स्लो डाउन योर कंप्यूटर। The most common symptom of any kind of computer virus is that our computer or our mobile phone starts working slow. Fine, अब हम लोग के मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के स्लो वर्क होने के पीछे सिंपल सा रीज़न क्या है कि वहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा चलती रहती हैं। फाइन, नाउ वायरसेस कैन रन इन द बैकग्राउंड विदाउट बीइंग सीन एंड मे कॉज योर कंप्यूटर टू रन एक्सट्रीमली स्लो। ये जो वायरसेस होते हैं भाई क्या करते हैं, ये विदाउट एनी रीज़न तुम्हारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे वर्क करते रहेंगे, मतलब तुम्हारे सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे एंड अल्टीमेटली दिस विल मेक योर सिस्टम वेरी स्लो। देन नेक्स्ट इज इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम। नाउ व्हाट दीज वायरसेस कैन डू, दे कैन हैक और दे कैन गेट एक्सेस टू योर ईमेल्स। फाइन, सम फॉर्म ऑफ वायरसेस मे wreak even more havoc by spreading themselves to the contacts in your address book। ये क्या करते हैं भाई, हमारे पीसी में एक्सेस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा को ही नहीं डैमेज करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे कंप्यूटर में या हमारे पीसी में जितने भी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, जो भी ईमेल्स अवेलेबल हैं, फाइन, जितने भी हम लोगों के इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर थी, उन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस करना या रिट्रीव करना स्टार्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइजेज योर डेटा, कंप्यूटिंग हैबिट्स एंड आइडेंटिटीज़। भाई ये वायरसेस क्या करते हैं, स्पेशली फाइल टॉक अबाउट स्पाईवेयर्स और एडवेयर्स। जितने भी स्पाईवेयर्स और एडवेयर्स होते हैं क्या करते हैं भाई, हमारे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को, हमारी सर्च हैबिट्स को, हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी को, फाइन, हम लोग के नेट प्रोवाइडर को, या वो सारी चीज़ें जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी क्या करते हैं, ये अटैकर्स तक का या वायरस क्रिएटर्स तक का या फिर हैकर्स तक का पहुँचा देते हैं। स्पाईवेयर कैन मॉनिटर अबाउट योर कंप्यूटिंग हैबिट्स। स्पाईवेयर क्या करता है, हमारी की सारी कंप्यूटर हैबिट्स को मॉनिटर कर सकता है, सच एज व्हाट वेबसाइट्स यू आर विजिटिंग, और इट कैन ऑल्सो रिकॉर्ड्स द की स्ट्रोक्स। मतलब क्या करेगा, तुम्हारी जितने भी तुमने कीज प्रेस करी होंगी उनको भी स्टोर करेगा, विच इन द एंड कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी पर्सनल चीज़ें जो होती हैं वो स्टील हो जाती हैं या फिर हमारी जो ऑनलाइन आईडी है वो चोरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पाईवेयर कैन रिकॉर्ड द की स्ट्रोक्स that you use while keying in a credit card. Fine, सपोज करो तुम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे थे और तुमने ऑनलाइन बैंकिंग के टाइम पे अपने एटीएम का पासवर्ड या फिर तुमने अपना एटीएम पिन और कार्ड की डिटेल्स टाइप करी, ठीक है। अब जैसे ही तुमने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करी, तुम्हारे पीसी में कोई स्पाईवेयर था जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता था, और वो स्पाईवेयर क्या करेगा, तुम्हारे कार्ड की डिटेल्स को तुमसे बिना पूछे वहाँ से स्टील कर लेगा एंड देन इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम, और ये तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का डेटा लॉस भी कर सकता है।
then alters PC settings. Well, sometimes in some forms these spywares can also alter your computer settings. मतलब क्या करेंगे ये, तुम्हारे कंप्यूटर में स्नीक इन करके तुम्हारे सिस्टम की सेटिंग्स को, तुम्हारे ब्राउजर की सेटिंग्स को डैमेज कर देंगे या फिर उसको चेंज कर देंगे. लाइक वेब ब्राउजर होम पेज सेटिंग और द प्लेसमेंट ऑफ योर डेस्कटॉप आइकन्स. इस केस में डेटा ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, बट ये जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाती हैं और कुछ टाइम के बाद हम लोग इन सारी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं और यहीं से हैकर्स को एक गेटवे मिल जाता है सिस्टम को हैक करने का. देन नेक्स्ट इज स्लोज डाउन योर पीसी. भाई ये क्या करते हैं, टाइमली हमारे कंप्यूटर को बल्कि बना करके बहुत स्लो कर देते हैं. स्पाईवेयर्स कैन रॉब योर पीसी और सिस्टम स्पीड एंड इंटरनेट एक्सेस एफिशिएंसी. स्पाईवेयर्स क्या करते हैं, हमारे नेट की स्पीड को डैमेज करते हैं. मतलब सपोज करो तुम अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जहाँ पे नेट का कोई भी यूजेस नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, बैकएंड पे बैकग्राउंड में क्या हुआ, एक स्पाईवेयर ऐप थी, वो क्या करी, तुम्हारे फ़ोन से गैलरी की सारी इमेजेस को किसी थर्ड पार्टी तक का पहुंचा रही थी. तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा नेटवर्क जो है वो एक्सट्रीमली यूज़ होगा तुम्हारी परमिशन के बिना. दिस कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज़ द प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर ऑन योर पीसी. फाइन, अगर तुम उस केस में कोई भी अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो भाई वहाँ पे हम लोगों का डेटा लॉस भी होता है, हम लोगों का वर्क भी नहीं प्रॉपरली हो पाता है और अल्टीमेटली हम लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं. द नेक्स्ट, एडवेयर्स ट्रैक इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर्स. अब ये जो हमारे पीसी में एडवेयर्स आते हैं जो हम लोगों को बहुत सारी एड्स शो करते हैं पॉपअप करके. फाइन, याद रखना ये एडवेयर वो वाली एड्स नहीं है जो हम लोगों को यूट्यूब या और किसी वेबसाइट में वीडियो प्ले करते टाइम शो होती हैं. फाइन, ये एडवेयर्स वो वाली एड्स हैं जो अचानक से हमारे डिस्प्ले को कवर कर लेती हैं, पूरी की पूरी डिस्प्ले को, फिर वो चाहे तुम्हारा मोबाइल हो या फिर तुम्हारा वो पीसी. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्ले एनी गेम, जब भी तुम कोई गेम प्ले करते हो तो मैं नोटिस करा होगा अचानक से कोई ऐड आता है, 15 या 20 सेकंड्स का ऐड होता है और तुम्हारी पूरी की पूरी डिस्प्ले को कवर कर लेता है, तुम उसको स्किप नहीं कर सकते हो वहाँ से. फाइन, तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये काम होता है एडवेयर का. एडवेयर ट्रैक योर इन्फॉर्मेशन, योर डेटा एंड कंप्यूटिंग हैबिट्स. स्पाईवेयर की तरीके एडवेयर भी क्या करता है, हमारी कंप्यूटिंग हैबिट्स को, हमारे आईपी एड्रेस को, हमारे सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है, उसको हैक करता है और उसके बेसिस पे हमारे कंप्यूटर में टारगेटेड एडवर्टीजमेंट शो करना स्टार्ट कर देता है. द नेक्स्ट, डिस्प्लेज एरेज ऑफ अनोइंग एडवर्टीजमेंट. कभी कभी क्या होता है भाई, एडवर्ट्स क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट जिनके लिए तुमने कभी भी सब्सक्राइब भी नहीं करा होगा बेटा, ऐसे बहुत सारे एड्स तुम्हारे डिस्प्ले पे कॉन्टिन्यूसली पॉपअप करता रहेगा जिससे तुम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे. दिस में इवन एवरी टाइम यू ओपन योर वेब ब्राउजर. ऐसा कब होगा, जब भी तुम अपने पीसी में बार बार वेब ब्राउजर को ओपन कर रहे होगे. तो भाई अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने अभी पढ़ा डैमेजेस कॉज्ड बाय मैलवेयर. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस द सेफ्टी मेजर्स. अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेफ्टी मेजर्स को डिस्कस करेंगे, वेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस एक्टिव प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, there are two things that you have to do now. First, homework. Read the whole chapter. Fine. First of all, you have to read the chapter from your book very carefully. Along with that, when you will read, obviously you will find some difficulties with some terms or with some definitions, so you have to comment down all your queries. Fine. I want all your queries in the comment section. So comment down your queries. And the next important part, you will get 5 question answers for today. अब इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को रिटन नोट्स नहीं दूंगा, इस चैप्टर में तुम लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, ओनली क्वेश्चंस आई विल गिव यू, जिसके आंसर्स तुमको बुक से मार्क करके अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं. सो टुडे यू विल गेट 5 क्वेश्चंस जिसके तुमको आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने होंगे. फाइन, इट मीन्स फॉर टुडे यू आर गेटिंग 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू पेन डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, 5 क्वेश्चंस में दूंगा जिसको पेन डाउन करना है अपनी नोटबुक में. यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम योर बुक एंड राइट देम प्रॉपरली. ओके, नाउ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बेटा घर के बाहर बिल्कुल मत निकलो, अपने हाथों को सैनिटाइज करो प्रॉपरली एंड अवॉइड गोइंग आउटसाइड. एंड स्पेशली व्हेन यू विल सिट इन योर होम, you have just one work to do, that is you have to learn. So keep learning. And thank you all for watching this video. I hope सबको सारे concept समझ में आ रहे होंगे. Over this side you will get the class 9 playlist. तो भाई playlist में जाके सारी previous videos देखो. अगर किसी ने कोई भी part skip कर दिया है then please visit the playlist and do watch all the videos. And over this side you will get the previous class video.
तो यहाँ पर तुम लोगों को प्रीवियस क्लास की वीडियो मिलेगी, जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर तुमने नहीं देखी थी। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ जिससे तुम लोगों को प्रीवियस क्लास की वीडियोस नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो प्लीज़ टाइमली सारी वीडियोस को एक बार ही देख लो। थैंक यू ऑल।